जेएलयू टेक का बनाया है एक्चुअली, पूरा नहीं है सर। नहीं बना लिया ना आपने बस सर, ठीक है। बना लिया। हाँ, प्रदीप जी, साईं जी, आपका क्या स्टेटस है सर? Satya, I was not available for last two classes. I just attended the first class of Lokmanji, and today I came again. I was busy in some meeting. कोई बात नहीं सर। साईं Sure. सर, आपका प्लीज स्टेटस बताएं प्लीज। साईं सर की आवाज नहीं आई। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने ये चीज नहीं कर पाई तो प्लीज क्लास एंड ना करें आप। क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आप लाइव ही कर लें, आधे घंटे एक्स्ट्रा लगा के, ताकि ना आप पीछे ना रह जाएं। बस इतना ही सबमिशन है मेरा। प्लीज सर आज कंटिन्यू करें सर आप। ठीक है, थैंक यू सत्या, थैंक यू। तो आज हम लास्ट में मैं जल्दी से टॉपिक खत्म करके सत्या को हैंड ओवर करूंगा। सत्या आपको लाइव ही कराएंगे यहाँ बैठ के, 10-15 मिनट का टाइम लेंगे। इन लास्ट 2 क्लासेस वी हैव कवर्ड marketing strategy and how to execute a marketing plan. So that we have done so far. Now, today we are going ahead, one step ahead. And in this step, what we are going to do, हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे कि आज पहला स्टेप लेंगे मार्केटिंग की डायरेक्शन में। तो क्या रिक्वायरमेंट है और क्या हमें करना है, आज 2 काम करने वाले हैं हम। जब हमने लास्ट टाइम जो क्लास में हमने सीखा था कि whenever we are going to promote our business online, then the first requirement is our website. If it is not there, then you have no presence in this virtual world. So to have your presence in this virtual world, you require your website. Primarily, it is your primary requirement. So that we are going to discuss, and then we would learn how to design our advertisements. एडवर्टीजमेंट को खुद डिजाइन कैसे कर सकते हो आप, आज वो सीखेंगे। डेली हम एक छोटा पार्ट थ्योरी का रखेंगे, 10 मिनट का, बाकी प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो आज मैं आपको बस एक 10 मिनट आपको लेके चलता हूं। सत्या, मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सो जब हमने मार्केटिंग को प्लान कर लिया, उसकी स्ट्रेटजी बना ली, मार्केटिंग प्लान बना लिया, देन मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जब हम चलेंगे, देन वी वुड रिक्वायर सम थिंग्स, some components of it, some infrastructure. So that is called digital marketing ecosystem. So that ecosystem is required now to deliver your marketing advertisements to connect with the people on this digital marketing world. How you would connect? To connect with, you would require digital marketing ecosystem. So what is this ecosystem and what you require to develop? So that is what. So so I'm just sharing some facts of a survey. Yes, great. Okay, Satya, thank you. So a survey says we Indians are highly information seekers, and advertisement has very high impact on us, and 90% buyers are noticing ads, means 90% buying is going through ads, offline and online. And out of this 90%, 35% buyers are buying through online media. So there is a big scope, means there is a big future of marketing through digital media. Okay, Satya. So now, if we are going to promote our business through this digital marketing process, then what platform we would require, what things we would require, so that we are going to discuss now. So to go ahead, what is this ecosystem and how you can design this, what are its components? So you can see on this screen. So first thing, you would require your Google presence. For your Google presence, there are 3 things which are required essentially. And out of these 3, you should do minimum 2.
The one Google My Business page, which you have created, few of us have created already, and few have not, then those who could not do it, they can do it now. तो जिन लोगों ने अभी तक क्रिएट कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं तो गूगल माय बिजनेस पेज जरूर बना लें। ये फ्री में आपको सर्च करने देता है। दुनिया में कोई सर्च करेगा तो आप सर्च में आ जाएंगे। आपको आइडेंटिकल नेम से सर्च करेगा, एग्जैक्ट नेम से सर्च करेगा, सिमिलर नेम से सर्च करेगा, तो कहीं तो प्रेजेंस बनेगी, कोई तो आपके कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट्स पा सकेगा। तो पहला फ्री में है, आप गूगल माय बिजनेस पेज, ये स्टेप हमने पार कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया वो आज कर लेंगे। एंड द सेकेंड थिंग विच इज वेरी मच इसेंशियल फॉर अस, अगर बिजनेस में जाना है तो वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट इज जस्ट लाइक आवर ऑफिस इन ऑनलाइन वर्ल्ड। ऑफलाइन में जैसे हम एक प्लॉट लेकर एक ऑफिस बनाते हैं, उसका एक एड्रेस होता है, लोग वहां हमें सर्च कर सकते हैं, हमें लोकेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो लोकेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। वैसे ही ऑनलाइन आपको कोई कहां ढूंढेगा? अगर आपको बिजनेस नेम से ढूंढेगा तो आपकी वेबसाइट कहीं होनी चाहिए। तो सेकंड थिंग, आपके पास वेबसाइट का होना बहुत ही एसेंशियल है। अगर आप बिजनेस प्रमोशन में जा रहे हैं तो किस किस के पास यहां वेबसाइट है अपनी, मुझे प्लीज बताएंगे। जिनके पास नहीं है नो लिख के बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख दें जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। नागेश सेट्टी जी के पास अभी नहीं है, तो नागेश जी आपको मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले एक वेबसाइट के लिए सोचो। और अभी वो वेबसाइट आपकी सिर्फ वन वे डिस्प्लेइंग हो सकती है, यानी अभी आपके पेजेस सिर्फ डिस्प्ले के लिए हो सकते हो, पर आगे चल के उसे आपको रिस्पॉन्सिव बनाना होगा और उसी को एलएमएस बना सकते हो आप। जो चीज़ आप टीचेबल पे ढूंढ रहे हो वो चीज़ें आप खुद उधर कर सकते हो। साइमा मैम, इट्स देयर बट नीड टू अपडेट इट। ग्रेट। साई जी के पास यस है, बहुत बढ़िया। तो दो लोगों के पास वेबसाइट है और नागेश जी को बनानी है। तो चलिए, अब जिनके पास, हम लोग तो कई हैं, बाकी लोगों को प्रदीप जी आपसे भी चाहूंगा मैं, क्या स्टेटस है सर? ठीक है नागेश जी, आप जुड़ सकते हैं। प्रदीप जी का अपडेट नहीं आया। तो वेबसाइट का है क्या, वेबसाइट का रोल, और मैं एसईओ पार्ट पे बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा दूं जो मैंने खुद बनाई है। ये एक वेबसाइट है एंड यू वुड नॉट बिलीव, इस वेबसाइट को भी 1 साल से ज्यादा हो गया और मैंने इस वेबसाइट पर सिर्फ 1000 रुपये खर्च किए अभी तक, ओनली 1000। और ये वेबसाइट मेरे को देखिए क्या देती है। मेरे होम पेज पर जब भी जाओगे यू विल सी ऑल द कोर्सेज एंड दिस होम पेज इज कैन बी कंसिडर्ड एज माय ऑनलाइन स्टोर। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहां से कोर्सेज की बुकिंग कर सकते हैं। रादर दे आर रिकॉर्डेड लाइव कोर्सेज, अभी रिकॉर्डेड मोड पे नहीं है। आप वहां से बुकिंग कर सकते हो, डायरेक्ट पे कर सकते हैं, पेमेंट गेट पे इंटीग्रेटेड है, मेरा पूरा सोशल मीडिया इंटीग्रेटेड है वहां। एंड अबाउट पेज को मैंने बहुत लंबा किया है, जिसमें 2 पेजेस को इंटीग्रेट कर दिया है, जिसमें पूरी टीम भी वही है। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज, वो जो कोर्सेज वहां थे वो सेम यहाँ है, मतलब मैंने इस पेज को होम पेज से कनेक्ट किया है। ऑफलाइन कोर्सेज में मेरे जितने भी वर्टिकल्स में हम काम करते हैं वो सारे वर्टिकल्स की डिटेल यहाँ अवेलेबल है। कॉर्पोरेट एजुकेशन, CSR, सोशल, डिजिटल मार्केटिंग। नाउ जितने भी कोर्सेज रन हो रहे हैं उनके रिकॉर्डेड लेसन नेक्स्ट डे वेबसाइट पर अपडेट हो जाते हैं। ऐसे करके इनके सबके सेक्शंस बने हुए हैं। उस सेक्शन में जाके लोग बिना लॉगिन किए अंदर नहीं जा सकते। मैं, क्योंकि मेरा ये ओनर अकाउंट है, ये देखिए वो लॉगिन मांगेगा, आपको शो तो करेगा बट आपको लॉगिन मांगेगा। वो बिना लॉगिन के आप ऑफलाइन आप उसके कंटेंट्स नहीं देख सकते। आप लॉगिन करोगे तो आपको करने देगा। रिकॉर्डेड लेसन हो गया, फ्री रिकॉर्डेड लेसन, यानी यहाँ भी आप
सिर्फ साइन अप करें, इसमें कोई भी आके साइन अप करके और यहाँ से रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स देख सकता है। यानी हम ये जो हमारे फ्री लेसन्स होते हैं, फ्री वेबिनार होती हैं, वो सारे लेसन्स यहाँ अवेलेबल हैं। कोई भी लॉगिन करके यहाँ से ले सकता है। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया तो ये मेरे को पूरा नहीं दिखाएगा। ये हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, पूरे के पूरे टेस्टिमोनियल्स यहाँ मैं खुद अपडेट करता हूँ यहाँ। एंड गैलरी, पिक्चर्स एंड वीडियोस बोथ, फ्री ई बुक्स आर देयर। ये फ्री ई बुक्स भी आपको तब डाउनलोड करने देगा जब आप लॉगिन करेंगे। आपको दिखा देगा बट आपको डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, यानी खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड ब्लॉग, यही ब्लॉग भी अवेलेबल है। तो सारी ब्लॉगिंग एक्टिविटीज मेरी सब यहाँ हैं, जहाँ से ज़्यादा व्यूज़र आते हैं। तो ये देखिए यहाँ ब्लॉग हो गया। इतने सारे पेजेज ये ऑपरेट करती है और इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आप इस पे कहीं भी रजिस्टर कर दो, आप इसके सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में ऐड करेगी वेबसाइट और फिर आपके साथ ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। इमीडिएट आपको वेलकम ईमेल भेजेगी। उसके बाद फर्दर जितनी भी ईमेल कैंपेन्स चलेंगी या कोई भी ब्लॉग मेरा अपडेट होगा, कोई ब्लॉग पोस्ट आएगी, वो ब्लॉग पोस्ट भी आपको ऑटोमेटिक चली जाएगी। जब भी कोई ब्लॉग आएगा यहां से मैं सारे ब्लॉग्स को, आप ये देखेंगे शेयर पोस्ट करते ही मैं इसे लिंक्डइन पे भेज सकता हूँ, फेसबुक पे भेज सकता हूँ, ट्विटर पे भेज सकता हूँ, ईमेल्स पे ऑटोमेटिक चला जाता है और मुझे व्हाट्सएप भेज सकता हूँ, टेलीग्राम पे डाल सकता हूँ, मैं जहां इसे भेजना चाहूँ भेज सकता हूँ। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है। SEO आई कैन डू माई सेल्फ। तो मैंने इसको क्या किया, खुद SEO किया। अभी आप पीपल और अलग अलग ट्रेनर्स भी लिख दोगे तो आप देखेंगे सबसे पहले मेरा गूगल माई बिजनेस पेज आएगा आपके पास और उसके बाद सीधे peopletrainers.in। peopletrainers.in दुनिया में 2 ही वेबसाइट है और सबसे पहले ये जो नीचे वाली वेबसाइट है बहुत पुरानी है और ये हमारी नई वेबसाइट है, सबसे टॉप पे ओपन होती है। का मतलब है जब भी आप को कोई ढूंढे, आपके सिंगल नाम से भी ढूंढे, कोई ऑनलाइन टीचिंग के नाम से ढूंढे तो आपकी वेबसाइट आए, कोर्स के नाम से ढूंढे तो आपकी वेबसाइट आए। तो ऐसे करके ये वेबसाइट इतनी स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सिव 2.0 लेवल वेबसाइट है, रादर 2.5 3.0 यू कैन से इट। तो अब इसके सारे कोर्सेज की डिटेल्स आपको यहां से मिल जाएगी। आप जब भी क्लिक करोगे ये देखो तो ये आपको ये भी बताएगा कौन सी क्लास कौन से दिन है। ये देखिए सारे क्लासेस के स्ट्रक्चर, कोर्स के स्ट्रक्चर, फीस का स्ट्रक्चर, कब कब क्लासेस हैं, पूरा शेड्यूल है, कौन उसका अकाउंट मैनेजर है, एवरीथिंग इज देयर। अगर ये वेबसाइट मैं 1000 रुपए में 1 साल के लिए रन कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। एंड आई एम नॉट ए पर्सन ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट इज नॉट माई कोर। आई एम अ ट्रेनर, बेसिकली माई कोर इज ट्रेनिंग। तो जब मेरी कोर ट्रेनिंग है, and I thought when I started this business, I thought, so I went to somebody that I want a website and he asked a huge amount to develop this. इसे बनाने के बहुत पैसे मांगे। तो मुझे लगा कि अभी तो मेरे पास टाइम है तो why should not I try? मैंने ट्राई करने की कोशिश की and you would not believe within 15 days, so I designed and developed 2 websites. Rather they were not in good shape, but slowly. So I kept learning, I kept studying online and then I could do it. आज आपके सामने एग्जाम्पल है। तो मैं ये कहूंगा कि you also can do this. आपको बहुत पैसा देने की जरूरत नहीं है, रादर थोड़ा बहुत किसी की सपोर्ट आपको शुरू में चाहिए तो आप ले सकते हैं। आप ऐसे करके अपनी वेबसाइट बनाएं। आज हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन कोर्सेज सेल होते हैं, इससे लोगों के साथ कनेक्टिविटी है। आप देखेंगे कि जिस दिन मैं एक पोस्ट डालता हूं, ब्लॉग पोस्ट डालता हूं, सैकड़ों लोग वेबसाइट पर फुटफॉल होता है। इतनी विजिट आ रही है तो वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो वो हमेशा फर्स्ट पेज पे आएगी। ये देखेंगे कि कभी भी सेकंड पेज, मैं जब भी इसको क्लिक करूंगा, पीपल जैसे ही लिखूंगा तो ये पीपल ट्रेनर्स जैसे ही लिखोगे आपको फर्स्ट पेज पे आएगी। और सेकंड पेज पे दुनिया में कोई आदमी सर्च करने जाता नहीं है। फर्स्ट पेज पे जो मिल गया तो मिल गया। तो यहाँ फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि सबसे सारी सर्च मेरी ये हमारी वेबसाइट की है। गूगल माई बिजनेस पेज हमारा है, वेबसाइट हमारी है, उसके बाद लिंक्डइन पे हमारा अकाउंट है,
फेसबुक का हमारा अकाउंट है, फेसबुक का दूसरा अकाउंट हमारा है, इतने सारे देखेंगे आप हमारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। यानी पहले 5-7 ऑप्शन ही हमने घेर रखे हैं और बिना पैसे खर्च किए, है ना ब्यूटी। तो आप भी ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करें। तो वेबसाइट क्रिएट करने के बाद फिर आपका सेकंड ऑप्शन आता है कि आप उसे एसईओ करें। मैं वापस आपको ले चलता हूं उस पेज पर। जब वेबसाइट होगी तो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा। मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मींस गूगल इज अ सर्च इंजन। सो इफ यू आर पुटिंग सम कीवर्ड टू सर्च समथिंग, तो वो आपको लेकर आ जाए। अगर ऑनलाइन टीचिंग की बात करें तो वो पीपल ट्रेनर्स की वेबसाइट को दिखाए। अगर हम ई बुक की राइटिंग की बात करें तो पीपल ट्रेनर्स की वेबसाइट को पुल करके दिखाए। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की बात करें तो पीपल ट्रेनर्स को शो करें। वो कब होगा? जब इन कीवर्ड्स को हम अपनी वेबसाइट में प्लग इन करेंगे और वहां से सर्च इंजन का एल्गोरिदम, सर्च इंजन के क्रॉलर्स, जब भी कोई सर्चर उसे सर्च करेगा तो वो हमारी वेबसाइट को उठा के उसके फर्स्ट पेज पे दे। ये एक्सरसाइज एसईओ कहलाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एडिशनल एट सेकंड स्टेप मेथडोलॉजी है, और वो जब अप्लाई होगी जब आपका प्लेटफॉर्म रेडी होगा। तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट रेडी हो और फिर उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से टेक्निक से कनेक्ट करें, कीवर्ड्स डालें और फिर वो आपकी सर्च में आनी शुरू हो। जब सर्च में वो आनी शुरू होगी तो लोगों का फुटफॉल आपकी वेबसाइट पे बढ़ेगा। तो आपके लिए इनबाउंड मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक वेबसाइट हो। अब ये वेबसाइट कैसे कैसे बन सकती है वो मैं थोड़ा सा आज डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा अगले लेसन पर। एंड इसका थर्ड ऑप्शन है आपका सर्च में आने का पीपीसी। पीपीसी मींस जो मैम अभी साइमा मैम बात कर रहे थे कि उसके लिए पेड सर्च है, तो इसको कहते हैं पे पर क्लिक। पे पर क्लिक यानी गूगल एडवर्ड्स में आपने अपने को रखा, अपने एड्स रन किए और वहां लोग आपको देखते हैं। अगर आपकी एड लोगों को दिखाई देती है सर्च में एड की फॉर्म में, तो लोग उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही कोई क्लिक करेगा आपको पैसा देना पड़ेगा गूगल को उस क्लिक का, कि किसी ने आपको क्लिक किया है। जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो ये पीपीसी फैसिलिटी, पीपीसी फीचर है गूगल का। अगर आप एड रन करते हो गूगल एड पर, एडसेंस पर, तो आप वहां जाके आपको वहां पैसा देना पड़ेगा। एक तरीका ये पेड है। गूगल माई बिजनेस पेज फ्री है। वेबसाइट और एसईओ भी दोनों पेड ऑप्शन है, बट वो पीपीसी के कंपैरिजन में बहुत सस्ते हैं। पीपीसी बहुत कॉस्टली है, पीपीसी का कॉस्ट ज्यादा है। तो आपको अगर आप शुरू कर रहे हो बिजनेस तो और पीपीसी पर जाओगे तो आपको बहुत पैसा खर्च करना होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप गूगल माई बिजनेस पेज और वेबसाइट दोनों को जल्दी से तैयार करें और वेबसाइट को एसईओ करना खुद सीखें, ताकि वेबसाइट जल्दी आपकी सर्च में आनी शुरू हो। जब आपको, अगर आप किसी और से करवाओगे उसके पास 50 वेबसाइट का काम हो सकता है, वो आपकी वेबसाइट पर उतना फोकस करके काम नहीं कर सकता जितना आप कर सकते हो। डेली आपके कोर्सेज में, डेली आपकी सर्विसेज में, डेली आपके प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ चेंज होगा। आप किस किस के पास भागते रहोगे, किसके पीछे भागते रहोगे कि मेरी वेबसाइट में ये पर्टिकुलर चेंज कर दो, ये टेस्टिमोनियल ऐड कर दो, ये इमेज चेंज कर दो, ये मेरा टीम मेंबर ऐड कर दो, ये मेरे कोर्स में चेंज आया, ये मेरी डेट चेंज कर दो। कौन करेगा? तो आपको डायनेमिक वेबसाइट बनानी है जहां पर रोज चेंजेस हो, तो वो आपको खुद ही सीखना चाहिए। और ये कोई ऐसा काम नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स इजी, यू कैन डू इट। हमें क्या करना है, ऊपर वाली लाइन में से 3 ऑप्शन मैंने दिए, कोई 2 ऑप्शन हमें जल्दी से कर लेने और फर्स्ट 2 ऑप्शन जो है वो रिकमेंडेड है। तो हमारा इकोसिस्टम का बेस शुरू होता है, फाउंडेशन शुरू होता है हमारे वेबसाइट से। तो आप सब एक वेबसाइट शुरू करें। उसके अलावा 4 और चीजें हैं जो बेसिक कंपोनेंट हैं। एक, आपको अपना सेल्स फनल क्रिएट करना पड़ेगा। Sales funnel is what? It is a simple methodology to attract people, to capture people out of the crowd which is available on online platforms.
करोड़ों लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हैं, पर आपकी तरफ कुछ लोग अट्रैक्ट हों और उनको अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींचने के लिए जो एक फिनोमिना होता है, जो एक प्रोसेस होता है, जो एक फीचर होता है, उसे हम सेल्स फनल बोलते हैं। हाउ इट वर्क्स हम उसको डिटेल में एक पूरी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, माइट बी इन नेक्स्ट क्लास। सो हाउ दिस सेल्स फनल वर्क्स एंड व्हाट इट इज, वो पूरा डिस्कस करेंगे। एंड ईमेल सिस्टम वर्क्स इंटीग्रेटेड विद दिस। तो ईमेल जो अभी आप काम कर रहे हो ईमेल से, वो आपकी जो पर्सनल ईमेल है या ऑफिशियल ईमेल है, सो दिस इज नॉट इनफ फॉर योर ईमेल मार्केटिंग. You have to upgrade it and you have to integrate this with your sales funnel. जब ये आपकी सेल्स फनल के साथ और आपकी वेबसाइट के साथ एज अ रनवे, एज अ पाथवे फॉर कम्युनिकेशन यूज होगी, तब आपकी ईमेल आईडी का सही यूज होगा मार्केटिंग के लिए. अभी वो सही यूज नहीं हो रहा. तो आपकी ईमेल आईडी आपका पाथवे बनेगी, आपका गेटवे बनेगी, वो आपकी वेबसाइट और सेल्स फनल के लिए. तो आपको वेबसाइट ईमेल को एसएमटीपी अपग्रेड करना है, सेल्स फनल लेनी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने अकाउंट क्रिएट करके वहां मार्केटिंग करनी है. अब सोशल मीडिया पर कौन सा होगा? फेसबुक होगा और हमारा व्हाट्सएप होगा, टेलीग्राम होगा, ट्विटर होगा, प्रिंटरेस्ट होगा, इंस्टा होगा. इन सब पर हमारे अकाउंट्स होंगे. ये हमारा 6th वाले ऑप्शन में आता है. एंड 7th इज कंटेंट राइटिंग. You would write some valuable content for the people and will send it to the people. Then people will get attracted towards you. They'll consider you as a specialist of that particular subject you are delivering. So you are writing something and sending to them through social media platforms. Then this also attracts people towards you. So this is very fantastic idea that you attract people through content writing. And for you, it is not necessary to write a complete book. So you can write one article, you can write one paragraph, you can give one idea, so people will like it. So as an expert, you are giving some value to the people, people will like it and they'll get registered on your website, or they may become your subscriber and you can send your newsletters to them and containing some offers and people will avail your services. They can make a buying decision for your services. So this way, this whole ecosystem works. आपके इकोसिस्टम, मार्केटिंग इकोसिस्टम में अब आपको बस ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. एक वेबसाइट बनानी है, एक सेल्स फनल लेनी है, ईमेल को अपग्रेड करना है, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर देनी है. बस इतना सा काम हमें करना है. अब ये होगा कैसे? चलिए आज हम इस पर आगे बढ़ते हैं कि होगा कैसे. वेबसाइट मैंने बता दिया था. वेबसाइट आपकी फर्स्ट पेज पर रैंक करनी चाहिए, तब लोगों से जुड़ेंगे. और वेबसाइट हमें 2.0 वर्जन उसका लेना चाहिए. 2.0 मींस रिस्पॉन्सिव, 2 वे कम्युनिकेशन कर सके वेबसाइट. 1 वे का मतलब है आपने सिर्फ अपना कम्युनिकेशन छाप दिया, अपना डेटा, इमेजेस, वीडियो लगा दिए, लोग देख पा रहे हैं. बट लोग आपके साथ कम्युनिकेट करें, ऐसी वेबसाइट हो, वो लोग आपको वहीं से ईमेल लिख सकें, वो लोग वहीं से सब्सक्राइब कर सकें, वेबसाइट वहीं से न्यूज़लेटर भेज सके, वही आपको वेलकम ईमेल लोगों को कर सके, वही उनकी क्वेरी के रिस्पॉन्स दे सके. वो कोई उस पर क्वेरी करे तो लाइव चैट करे तो लाइव चैट का वेबसाइट जवाब दे. ऐसी वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए. तो अब वेबसाइट को हम फिर एसईओ करेंगे. एसईओ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्वालिटी कंटेंट रखना पड़ेगा. उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं. वेबसाइट को क्लीन करना होता है, उसके कोड को क्लीन करना होता है, पेज की स्पीड बढ़ानी होती है और उसके डिज़ाइन को स्ट्रीमलाइन करना होता है, उसके नेविगेशन हमें इम्प्रूव करना होता है, बैक लिंक्स कनेक्ट करने होते हैं और उसमें टैग्स डालने पड़ते हैं हमें, तो कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं, तब जाके हमारी वेबसाइट एसईओ होती है, तब लोग उसे देख पाते हैं. ये थोड़ी सी ग्रामर है इसके बैकग्राउंड की. तो आई थिंक ये क्लियर हो गई. अब हम इससे आगे चलेंगे. तो ये था आज का थ्योरी पार्ट. इसमें से अभी तक किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट. ये अगर हमें समझ में आ गया तो आगे अब हम एक एक स्टेप बढ़ते चलेंगे. सो इज देयर एनी क्वेश्चन सो फार? बहुत शांति है. My God, सर मेरा राकेश जी एक का. क्वेश्चन है. Yes, please. In case if somebody types नागेश शेट्टी, अभी मैंने देख रहा था, नागेश शेट्टी का ये किया तो मेरा
पूरा नाम हर जगह नागेश शेट्टी केएस है, बट यूजली आई एम यूजिंग एज नागेश शेट्टी। सो दूसरों का आ गया। सो अभी नागेश शेट्टी को ही प्रमोट करना है तो हाउ टू प्रोग्रेस लाइक अगर नागेश सेठी को प्रमोट करना है तो वेबसाइट का नाम भी नागेश सेठी ही हो, गूगल माय बिजनेस भी उसी नाम से हो, नागेश सेठी, और आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स बने वो एक ही नाम से हो। प्लीज आप अपने नाम को यूनिक रखें सारी जगह, उसी नाम के मल्टी चैनल्स पर अकाउंट हो। जब वो मल्टी चैनल्स पर सेम अकाउंट प्रमोट होगा तब वो सर्चेज में आना शुरू होगा। 8 जगह आपका है तो कहीं फर्स्ट पेज पे 1-2 लिंक तो उठ के आएगा आपका। और वो जो नागेश सेठी है वो ऐसा यूनिक सा नाम होना चाहिए। अगर नागेश सेठी कॉमन नाम हुआ तो 10 लोगों के आ जाएंगे सर। तो उस नाम में कुछ ऐसा चेंज करना जो अभी तक ऑनलाइन सर्च में यूनिकली आए। अगर कोई स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे करनी है, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं, वही ऑलरेडी जो नागेश शेट्टी केएस है उसी को नागेश शेट्टी बना सकते हैं ना। हाँ बना सकते हो, सब कुछ। हाँ बिल्कुल बना सकते हो। वो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही नाम के 10 लोग नहीं हो। जैसे मेरा नाम है लोकमान सिंह, तो मेरे नाम से दुनिया में वो 2 लोग हैं, एक नेपाल से एक मिनिस्टर है लोकमान सिंह कार्की, और एक मैं हूं। तो उन्होंने इतना काम कर रखा है अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, रोज कुछ ना कुछ अपडेट आते रहे हैं, उनके पूरी जिंदगी गुजर गई, तो भरा पड़ा है पूरा ऑनलाइन नेटवर्क उनकी वजह से। तो मुझे जब भी कोई सर्च करेगा सबसे पहले वो आके खड़े होते हैं। तो मेरा हाँ, तो मैं उनकी बराबर, उन्होंने 50 साल काम किया और मैंने अभी मेरा 20 साल का करियर है और ऑनलाइन मैं कुछ वर्षों से आया हूं। तो मुझे अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा तब उनसे आगे जाके खड़ा होऊंगा। उनके तो क्रिटिसिज्म इतने छपते हैं वहां के, वो सबसे आगे आ रहे होते हैं। तो आपको भी कुछ यूनिक सा करना नाम को, ताकि सर्च में जल्दी आए। नहीं, नागेश शेट्टी केएस आएगा तो पूरा मेरा नाम ही आएगा, मतलब 5-6 मेरा इस यही हो जाएगा। बट आपको सर कोई नागेश सेठी केएस से नहीं ढूंढेगा, समझना। हाँ, नागेश शेट्टी से ही ढूंढेगा, नागेश सेठी से ढूंढेगा, इतना ही नाम याद रहेगा। केएस लगाना वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा कि कोई लगाए। नागेश सेठी से ही ढूंढेगा। तो अगर आप नागेश सेठी भी रखते हो तो स्पेलिंग को देख लो, सेठी करते हो कैसे करते हो, ऑनलाइन में आप कुछ नहीं, भी वो करते हो। ACTTY ही है। हाँ SETTY। हाँ, उसी से और एक आदमी है। हाँ तो वो कम ही होंगे, क्योंकि सेट्टीज जो हमारे बहुत ज्यादा पंजाब के लोग होते हैं तो वो SETHI होते हैं, सेठी। हाँ, तो शेट्टी होता है। हाँ तो वो सेठी तो बहुत आ जाएंगे, शेट्टी आपके कम होंगे। हाँ, हाँ तो ऐसे हो सकता है। तो आई थिंक अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब बहुत सिंपल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आज हम एड डिजाइन करना सीखेंगे अगले 10 मिनट में। यानी सोशल मीडियाज पर अब आपको ऐड चलाना है, तो आज ऐड डिजाइन सीखते हैं। बहुत सिंपल है ऐड डिजाइन। हमें 2 तरीके के ऐड डिजाइन करने होते हैं, 3 तरीके से रादर। एक तो आप इमेज ऐड डिजाइन करते हो, दूसरा टेक्स्ट ऐड डिजाइन करते हो, तीसरा वीडियो ऐड डिजाइन कर सकते हो। तो 1 इज इमेज, सेकंड इज टेक्स्ट एंड थर्ड इज वीडियो। आज हम इमेज डिजाइन करना सीखते हैं। इतना हैंडी है, यू वुड लव इट। कुछ नहीं करना, जो आप जानते हो बस वही आपको करना है। और यहां मैं समझता हूं कि हम में से सब लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जानते होंगे, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। मैं आपको एड डिजाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करा सकता हूं, एक्सेल में करा सकता हूं, बट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बहुत सोफिस्टिकेटेड है, उसके टूल्स बड़े अच्छे हैं वहां। तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में करा रहा हूं। इससे सरल और कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर है ही नहीं। इतना इजी सॉफ्टवेयर है जहां आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को आपके लिए ओपन करता हूं। ये ओपन हो गया। अब यहां आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, ये देखना है कि मुझे ऐड किस चीज के लिए बनाना है। अगर मुझे व्हाट्सएप के लिए बनाना है तो इतना सिंपल है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, कि मेरे व्हाट्सएप को लोग मोबाइल पर ओपन करते हैं तो मोबाइल मेरा लेंथ में ज्यादा होता है, विड्थ में कम होता है। तो मुझे ऐड क्या करनी है, लंबी ज्यादा रखनी है। मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसको पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा। वेयर इज लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ। तो
तो मुझे लेंथ ज्यादा रखनी है, विड्थ कम रखनी है। नाउ इन केस आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर माय यूट्यूब, तो यूट्यूब आप देखेंगे वो उसका लैंडस्केप होता है, तो यूट्यूब का मुझे उसकी विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है। ऐसे बस इतना सा मुझे देखना है कि वो मेरा चैनल कहाँ ज्यादा चलता है। चैनल अगर कंप्यूटर ओरिएंटेड है तो मुझे उसकी विड्थ ज्यादा करनी है, अदरवाइज हाइट ज्यादा करनी है। तो मैं आज आपको एक बनाना सिखाता हूं। हमें अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम या मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाना है तो सिंपली आपको सबसे पहले उसका साइज लेना है। तो साइज के लिए आई विल गो टू द डिजाइन, and in design on the right side you would see slide size, and there is slide size 4:3 and 16:9। ये स्टैंडर्ड साइज मुझे मिलेंगे 4:3 and 16:9। so 16:9 is the size for YouTube and Facebook, and 4:3 is size for mobile phones पे जो भी चलना है वो सारे। तो मैं यहां अभी क्या करने वाला हूं, मैं मोबाइल पर मान लिया व्हाट्सएप के लिए बनाना है मुझे, तो आई गो टू 4:3। अभी आपको ये इमेजेस कहाँ, गूगल माई बिजनेस पेज पर लगानी है। मैं आज आपको ऐड इसलिए सिखा रहा हूं कि आज ही जब आप गूगल माई बिजनेस पेज बनाओगे तो आपको वहां 5 इमेज लगानी है अपनी। तो वहां 5 इमेज लगाने के लिए आपको 4:3 ले सकते हैं या 3:4 लेना। अब 4:3 ले लिया मैंने, तो इसका मतलब क्या लिया मैंने, विड्थ ज्यादा है, लेंथ कम है। तो मैं इसको थोड़ा सा, अगर अपोजिट करना है मुझे तो मैं कस्टम करूंगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दूंगा। अब ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए मुझे क्या है, इसको पोर्ट्रेट कर दूंगा। तो पोर्ट्रेट करके इट विल बिकम लाइक दिस। ये लीजिए, अब ये 4 इंच ऐसे हो गया, 3 इंच ऐसे हो गया। यहां आप अपनी अब एड क्रिएट करोगे, बहुत सिंपल है। यहां सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड डिजाइन करना है। बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में मैं क्या करूंगा, मेरे पास बहुत सारे ऊपर टेम्पलेट्स बने हुए हैं, इनमें से कोई भी एक बैकग्राउंड मैं यहां से ले सकता हूं। और आपको अपना फोटो ही डिजाइन करना है, तो ये देखिए मैंने यहां से एक थीम ले लिया। सामने से सबसे ऊपर टॉप में थीम थे, कोई भी थीम मैंने लिया। सो देयर आर मल्टीपल थीम्स, कोई भी एक थीम आप यहां से चूज कर सकते हो। यहां से थीम चूज किया, और यहां से आप देखेंगे साइड में से उसके वेरिएंट हैं, थीम के वेरिएंट्स हैं। तो यहां से थीम का वेरिएंट मैंने ले लिया। अब ये वाला वेरिएंट ले लिया। आपको अपनी इमेज लगानी है, नागेश सेट्टी की इमेज लगानी है। आपका फोटो लगा सकते हैं, मैं लोकमान सिंह की फोटो लगा के बताता हूँ। वहाँ बहुत सिंपल है, मैंने यहां से इंसर्ट किया पिक्चर, और मैं अपनी फोटो सर्च करता हूँ इन केस आई हैव, मेरे पास कहीं है तो। ये लीजिए, मेरे पास एक इमेज पड़ी है, इसको मैंने यहां से ले लिया। इमेज को मैंने रिसाइज किया, सिर्फ बीच बीच में लगाना है। अब यह इमेज मेरी नीचे से थोड़ी लंबी हो रही है, तो मुझे इसको क्रॉप कर देना है। डबल क्लिक करूंगा, राइट टॉप पर क्रॉप ऑप्शन है, आई विल क्लिक ऑन इट एंड आई विल एडजस्ट एंड रिसाइज दिस एज पर माय रिक्वायरमेंट। विल क्लिक ऑन क्रॉप वंस अगेन। ये मेरा वीडियो आ गया। In case I want to remove the background of this, in case I want to change the background of this image, simple. Double click on this. On the left top, you will have the option remove background. Now, आपको ये बैकग्राउंड चला गया, बट वो बहुत फाइन तरीके से नहीं गया क्योंकि इमेज उस तरीके से मिक्स थी, बट वो चला गया। आप उसे और एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड हट जाएगा। तो यहां ये इमेज क्रिएट हो गई। इन केस यू वांट टू राइट समथिंग, आप यहां कुछ लिखना चाहते हैं, आप यहां नीचे लिख सकते हो सिंपली। इसका फॉन्ट साइज ऊपर नीचे करना है, कुछ भी आप कर सकते हो, सिंपल
ये मैंने इसे बना दिया। इसको आप सिंपली फाइल सेव एज, एंड आप यहां अपना डिस्क्रिप्शन पूरा लिख सकते हो। आप अपने नाम के आगे जितनी भी लाइनें लिखनी है, कुछ भी लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, लिख दो। उसके बाद फाइल सेव एज। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह कि जब भी आप सेव एज करोगे तो आपको जेपीईजी फॉर्मेट में उसको सेव करना है। जेपीईजी, लोकमान सिंह 1 डेस्कटॉप, जेपीईजी फॉर्मेट, जस्ट दिस वन, और मेरी इमेज तैयार हो गई। यू कैन सी दिस इमेज। मैं आपको इमेज दिखाता हूं। ये लीजिए, ये आपकी इमेज बन गई। इतना सिंपल था। चलिए आपको एक ऐड डिजाइन करके देखते हैं। ये तो सिर्फ आपने अपनी इमेज डिजाइन की थी। यहीं आपको एक ही फाइल बना लो, आप ऐड डिजाइन की एक फाइल बना लो पीपीटी। उसी फाइल में आप उसको नाम दे दो ऐड डिजाइन्स 4x3, यानी व्हाट्सएप के लिए, या व्हाट्सएप के लिए अलग और यूट्यूब के लिए अलग। आप लैंडस्केप अलग बना लें एक फाइल में, और ये पोर्ट्रेट अलग बना लें। 2 फाइलें बना लें, काफी है। सारी एड्स इसी फाइल में डिजाइन करें। अभी मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी। तो मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहां से ये सारा कंटेंट हटाया, और फिर मैं डिजाइन पे गया। इस बार मैंने थीम चेंज की। इस बार थीम ये ले ली, और या ये थीम ले ली मैंने। अब मुझे एक ऐड डिजाइन करना है। मुझे कोई भी बताएं किस चीज का ऐड डिजाइन करूं मैं। हाँ, कोई जल्दी से अपना प्रोडक्ट बता दें, मैं उस प्रोडक्ट की आपके लिए ऐड डिजाइन करता हूँ। चक्रा बैलेंसिंग वर्कशॉप। चक्रा बैलेंसिंग, वंडरफुल। चलिए चक्रा बैलेंसिंग के लिए चलते हैं। तो मैं चक्रा बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले एक विजुअल इमेज लेके आऊंगा। आई विल गो टू इंटरनेट, विल ट्राई टू हैव फ्री इमेजेस फ्रॉम देयर। चक्रा बैलेंसिंग के लिए आई विल सर्च इमेजेस and we'll try to have one good image from here. तो मुझे क्या करना है, इमेज लंबी वाली लेनी है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ। कोई भी एक इमेज जो बहुत ही स्टनिंग सी हो, बड़ी अच्छी सी हो। इमेज ऐसी हो जिसमें कोई लॉजिक हो, जिसमें कोई अट्रैक्शन हो। तो मेरे पास एक ये इमेज मिली है, लाइफ एनर्जी। इस इमेज को मैंने कॉपी किया, यहां से सिंपली कॉपी किया। विल गो टू माय, यहां मैंने जाके आइदर आई इंपोर्ट इट और आई पेस्ट इट। अब इस इमेज का साइज है कि ये पूरी स्क्वायर इमेज है, और मेरा जो टेम्पलेट है वो लंबा है इससे। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे क्या करना है, इस इमेज के ऊपर नीचे कुछ लिखना है। अब आप देखेंगे इस इमेज का ब्लू कलर है और नीचे ऊपर अलग कलर है बैंड्स के। तो यहां मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। तो मुझे क्या करना है, इन बैंड्स का कलर भी सेम रखूंगा तो मेरी इमेज बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं यहां एक छोटा सा बैंड इंसर्ट करूंगा, और ये सिंपली ये बैंड इंसर्ट किया, एंड आई विल फिल दिस, विल ट्राई विद द सेम कलर, but I'm not getting the same color. You'll see I'm not getting the same color. No. And outline, so I'm removing the outline, but ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सेम कलर नहीं मिल रहा।
कंट्रोल सी कंट्रोल वी मैंने कॉपी करके नीचे भी लगाया। अब मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा है, वैसे चल सकता है, बट अगर सेम कलर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करूंगा, इसका कलर फिल करने के लिए सेव फिल, विल गो टू आई ड्रॉपर, विल सेलेक्ट फ्रॉम हियर। आप देखेंगे कि मेरा ऊपर वाला कलर सेम हो गया। सेम वे, विल गो टू सेव फिल, विल टेक आई ड्रॉपर एंड विल टेक दिस फॉर रेफरेंस। हो गया परफेक्ट। अब यहां मेरी पूरी की पूरी इमेज, अब आप बीच में से कहीं बता भी नहीं सकते कि ये मैंने आई ड्रॉपर से उसको सेलेक्ट करके वो बैंड्स लगाए। अब मुझे आप बताएंगे मैम आपका ब्रांड नेम क्या है? Hashtag Frackle at 3. जस्ट अ मिनट। तो साइमा हैशटैग, जी का लोगो बन रहा है। हाँ हैशटैग क्या बोला था मैम? Hashtag Frackle, FRACKLE, CKLE। A capital at number 3. 3 भी no space. अच्छा 83। At 3. हाँ एट का साइन तो नहीं लगाना ना, 80 नहीं 80. 80 लिखना है तो ये। और हैशटैग और फ्रैकल के बीच में स्पेस नहीं है। अच्छा चलिए मैं उसे कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये आपका हैशटैग एंड फ्रैगल। मैंने इसको और बड़ा किया और मैंने कलर कॉम्बिनेशंस, इसका मैं वाइट कर सकता हूँ, बहुत अच्छा जाएगा इस पे। येलो कर सकता हूँ, बहुत अच्छा जाएगा। और भी मैं कलर्स दे सकता हूँ इसको जो इसको मैच करेंगे। ये लीजिए, ये कलर बहुत अच्छा निकलता है। ऊपर आप अपना लोगो डिजाइन करना चाहते हैं तो लोगो डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ऊपर कोई कुछ टैगलाइन, कोई कैच लाइन देना चाहोगे जिससे लोग अट्रैक्ट हों साइड में? मैं से आपका कस्टमाइज करूं, एनीथिंग यू वुड लाइक टू, कुछ भी। मतलब यूजुअली मैं ऐसे सेल करती हूँ कि योर टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। हम्म हैंड्स। मास्टर चक्रा हीलिंग। वो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ डेमो कर रहे हैं हम। नाउ हेल्थ इज इन योर हैंड। हैंड्स, चलिए ये हो गया। आप चाहो तो इसको सर्कुलर भी डाल सकते हो। सर्कुलर डालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको शेप फिल करना पड़ेगा। आप इसे सर्कुलर इस पे ऐसे लगा सकते हो, वो भी हो सकता है। मैं अभी जल्दी में सिर्फ इसे, नाउ हेल्थ इज इन योर हैंड, ये बन गया। और कुछ आपको कोई ऑफर डालना है, कोई हेल्थ डालना है, कोई इमेज डालनी है, तो मैं यहाँ बेटर हेल्थ की एक इमेज लेके आऊंगा। तो बेटर हेल्थ, बेटर हेल्थ, कुछ और लेके आ रहा हूँ। इसको मैंने पेस्ट किया, नहीं ये तो स्पॉइल करेगा सिचुएशन को। मान लिया ये आपका लोगो है, ये मैं सिर्फ
यहाँ बेटर हेल्थ का लोगो, सिंपली मैंने टेक्स्ट को एडिट कर रहा हूँ एक बॉक्स डाल के। आप सब जानते हैं कि पीपीटी में कितना इजी है टेक्स्ट एडिट करना। इसको मैंने कलर दे दिया, चाहो तो इसको हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट थोड़ा सा ऑड लग रहा है, सिर्फ इसको वाइट कलर दे देता हूँ सिंपली। बेटर हेल्थ, नाउ हेल्थ इज इन योर हैंड, और ये बन गया आपका। मैं इसको फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, एंड फॉर्मेट इसका जपैक रखना है, हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मेट जपैक। तो फ्रैकाइल, इसको मैंने सेव कर दिया। मैं इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूं। और आपको दिखा भी देता हूं। डेस्कटॉप पर कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए, ये इमेज बन गई। अब इसमें से चाह के भी आप इन सारी चीजों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जपैक में फॉर्म हो गए सारे, सारा जेपीजी बन गया। ये है ना सिंपल, कितने सिंपली हम इसे कर पाए। और कुछ भी कर सकते हो आप, मतलब कोई इमेज आप नेट से उठाओ, उसे थोड़ा सा चेंज करो, कस्टमाइज करो, कलर कॉम्बिनेशंस चेंज करो, और अपना टेक्स्ट करके अपने आप के लिए कस्टमाइज कर दें, और वो इमेज आपके लिए ऐड बनाने के लिए काम आएगी। यही मैं आपके ग्रुप में भी डाल रहा हूं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो अगले 1 सेकंड में ये इमेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल होगी। लीजिए साहब, आपके व्हाट्सएप में भी पहुंच गई मैम। क्लियर है? इसमें कोई किसी के क्वेश्चन है? बहुत सिंपल है। व्हाट्सएप के लिए यूज करनी है तो आप 3x3 करें या 3x4 करें, इससे ज्यादा नहीं। टेलीग्राम के लिए भी यूज करने 3x3 3x4 करें। इंस्टाग्राम के लिए बनानी है तो 4x4 करें, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, या 3x3 करें, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, 16x16 करें। ये रेशियो तो कंप्रेस हो जाएगा, बट उसकी जो डायमेंशन है वो हमें ध्यान रखनी है बस। तो डायमेंशन शुड बी आइदर 3x3। इफ इट इज गोइंग फॉर इंस्टाग्राम, प्लीज यू कैन नोट डाउन, देन इट शुड बी in the square form. If it is going for Facebook, then it should be in landscape mode 16:9. For YouTube, it will work 16:9. And if it is going for WhatsApp, then you should go 3x4, and Telegram 3x4. So can do it. सिंपल है, कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो रेडीमेड टेम्पलेट्स चाहिए, ओके यू कैन, चलिए रेडीमेड टेम्पलेट्स पर चलते हैं। इतना सिंपल है। आज आप डिजाइनर बन जाएंगे, सेलिब्रेट करना। canva.com, कुछ भी नहीं, किसी के पीछे नहीं भागना आपको, इतना सिंपल है। आप बस अपने पावर पॉइंट को अपग्रेड करके रखो, उसको 10, 16, 19 वर्जन ले लो, बहुत अच्छे ऑप्शन है। canva.com पर जाओ, ये canva.com है, एंड यहां पर आप देखोगे कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। यहां साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना आज ही, और यहां सारे टेम्पलेट्स बने पड़े। तो आपको अपनी इमेज क्रिएट करनी है, जस्ट गो टू पोस्टर, पोस्टर पर क्लिक करो, एंड यू विल सी आपको सैकड़ों फ्री टेम्पलेट्स देगा ये पोस्टर डिजाइन करने के।
यहाँ गए एंड इतने सारे लेफ्ट साइड में देखोगे आप, बहुत सारे पोस्टर टेम्पलेट्स हैं. यू कैन गेट एनी वन. So I'm taking this one. ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिटी ऑफ सैन एंजल्स यहाँ है. आप इसमें कुछ भी लिखो. अभी मुझे कोई और ब्रांड बताओ आप अपना. 9 o'clock आपकी जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो. मैं बहुत सारे, कोई भी ब्रांड बता दें मुझे अपना, तो मैं आपके ब्रांड का एक ऐड डिजाइन करता हूँ. सर स्मार्ट स्कूल का बना दीजिए सर. स्मार्ट स्कूल सर, ठीक है. स्मार्ट स्कूल का. हाँ ले रहा हूँ सर, ले रहा हूँ, स्मार्ट स्कूल ले रहा हूँ. हेलो. यस सर, मैंने सुन लिया सर. मैं स्मार्ट स्कूल बना रहा हूँ, अभी सर्च कर रहा हूँ स्मार्ट स्कूल के लिए कोई टेम्पलेट. मैं यहाँ स्कूल, यस स्कूल सर्च किया मैंने. स्कूल, स्कूल सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए स्कूल के ये लीजिए मेरे पास एक आया. बहुत सिंपल है. यहाँ बी स्मार्टर देन योर सोर्सेज, स्मार्ट स्कूल. आप यहाँ एक इमेज लाओ स्मार्ट स्कूल की. स्मार्ट स्कूल की इमेज कहाँ से लाएंगे? गो टू इंटरनेट, स्मार्ट स्कूल की इमेज उठाओ, इमेजेस सर्च की, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट स्कूल. मेरे पास एक मिला ये ऑप्शन. स्मार्ट स्कूल से रिलेटेड मैं कोई भी एक इमेज बना रहा हूं और ये डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दूंगा और फिर मैं कैनवा में जाऊंगा. कैनवा में इसको अपलोड करूंगा क्योंकि कैनवा के पास वो नहीं था. तो कहता है ये काम करने के लिए तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा. लॉगिन करने के लिए लॉगिन विद गूगल करता हूं मैं. यहां से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा इसके लिए. चलो मैं बिना इमेज के बताता हूं तब तक आपको. बिना इमेज के यहां गए, आपने यहां चेंज कर दिया डेटा, स्मार्ट स्कूल. यहां से आपने लोगो हटा दिया. स्मार्ट स्कूल के लिए आप यहां से और कुछ लिखना है, कोई और इमेज चेंज करनी है, यहां से कर सकते हो. यहां से ये चीज हटा दी मैंने. कोई एलिमेंट डालना है आपको यहां, तो यहां से एलिमेंट निकाल सकते हो आप. ये मैंने स्कूल ले लिया यहां. ये लीजिए स्कूल का इमेज. एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है. तो यहाँ इमेज ब्लैक वाली ज़्यादा काम करेगी. स्मार्ट स्कूल, इसको नीचे ले जाऊंगा, इमेज को यहाँ ले आऊंगा. स्मार्ट स्कूल, बल्ब को मैं साइड में कर दूंगा. ये लीजिए, यहाँ और भी कुछ लाके लिखना है तो लिख सकते हो आप. ऊपर अपना लोगो लगाओ, नीचे और कुछ लिखना है लिखो. बाहर से इमेज लानी है तो अपलोड करके ला सकते हो.
और यहां से इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करोगे तो आपको क्या करना है, यहां से JPEG फॉर्मेट लेना है, JPG, सिंपल। JPEG लिया एंड डाउनलोड। ये कहता है ये प्रीमियम इमेज है, $1 पे मिलेगी, तो हमें ये प्रीमियम नहीं चाहिए, हम फ्री ले सकते हैं इसमें। जब आप इमेज सेलेक्ट करते हो तो ये आपको बताएगा कि प्रीमियम है, ये तो फ्री इमेज थी, पता नहीं ₹1 क्यों मांग रहा है। डाउनलोड JPEG, वन इंटू प्रीमियम इमेज। अच्छा, मैंने स्कूल लिया होगा इसलिए। एलिमेंट डाल रहे हैं दूसरा, प्रो, हाँ वो प्रो था। स्कूल वाली इमेज पैसे की थी, $1 की इमेज थी जो हमने ली थी। ये वाली इमेज फ्री की है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं किसी दूसरे कलर का, ताकि वो स्कूल बड़ी अच्छी तरह से निकल के आ जाए। ये लीजिए, इस कलर पे वो निकल के आ गया। अब इसको मैं डाउनलोड करूंगा तो ये पैसे नहीं मांगेगा, ये फ्री में मैंने डाउनलोड कर लिया। ये मेरे सिस्टम पे आ गया और मैं इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूं। ये लीजिए सर, स्मार्ट स्कूल की इमेज बन गई। ये इमेज लंबी है क्योंकि कैनवा सिर्फ एक ही साइज में पोस्टर A4 साइज में बनाने देता है आपको, ये उसकी लिमिटेशन है। तो यहाँ ये लंबी होगी, जब व्हाट्सएप में खोलेंगे तो ओपन करके देखनी पड़ेगी। पर पावर पॉइंट में आपके पास कस्टमाइज करने का तरीका है कि आप उसे बहुत अच्छी तरह ऐसे ही बना सकते हो, जिस साइज की चाहिए उस साइज की बना सकते हो। ये देखें, जैसे ये इमेज बनी थी, ऐसे करके आप अपनी एड के लिए इमेज डिजाइन कर सकते हो। तो अब आपको कोई 5 इमेज डिजाइन करनी है और वो गूगल माय बिजनेस पेज पे लगानी है। आपके प्रोडक्ट की हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है, आप जो अच्छा स्टनिंग सा समझना चाहें, ऐसी 5 इमेज क्रिएट करो डिफरेंट डिफरेंट, ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे। आपके प्रोडक्ट की इमेज बनाओ, चाहे आप अपनी इमेज बनाओ, उसको कस्टमाइज करो और गूगल माय बिजनेस पेज पर पोस्ट कर दो। और यहीं आप कैनवा पर जब आप लोगो बनाना है तो आपके पास लोगो बनाने का यही ऑप्शन है, बहुत बेटर ऑप्शन है। टेम्पलेट्स पड़े हैं इन केस यू वांट टू क्रिएट योर लोगो, सो यू कैन डू इट हियर। कार्ड, इंस्टाग्राम, पोस्टर, रिपोर्ट, वीडियो, सोशल मीडिया, और यहाँ आपको लोगो भी ऑप्शन होगा। यहाँ लोगो क्रिएट करने का भी ऑप्शन देता है वो। सर्च करता हूँ डिजाइन एनीथिंग लोगो, तो ये आपको लोगो के बहुत सारे टेम्पलेट्स दे देगा। ये है, ये बहुत सारे लोगो हैं, कोई भी एक लोगो आप लेके उसमें अपना टेक्स्ट चेंज करो, कोई एलिमेंट डालो, कोई इमेज डालो, कोई क्रिएटिविटी डालो, कुछ भी क्रिएटिव ऐड करें, नाम चेंज करें और उसको डाउनलोड कर दें। जब लोगो को डाउनलोड करोगे तो हमें करना है PNG फॉर्म में। तो आज 3 चीजें समझी हमने। लोगो बनेगा PNG फॉर्म में, जैसे ये था। इसको अगर आप स्मार्ट स्कूल का लोगो बनाते हो तो ये बनाया स्मार्ट स्कूल, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया। स्मार्ट स्कूल बना। यहाँ कोई एलिमेंट डालना है तो आप एलिमेंट डालना है, कोई टेक्स्ट डालना है, कोई लाइंस डालनी है। कुछ भी एलिमेंट यहाँ से ले सकते हो आप। स्मार्ट स्कूल को मैं यहाँ से छोटा कर लूंगा, ये लीजिए। इसे आप डाउनलोड कर लो, PNG में डाउनलोड होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होगा।
बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं तो आपको जल्दी में डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं बस कि क्या क्या कर सकते हो आप। इस पे गजब कर सकते हो इन दोनों चीजों के साथ, बहुत सिंपल है। गो टू डाउनलोड स्मार्ट स्कूल, सिंपल। ये लीजिए आपका लोगो तैयार, सेकंड्स में लोगो तैयार, मिनट्स में इमेज ऐड तैयार, आपका कस्टमाइज्ड विजुअल्स तैयार हो रहे हैं आपके। आप खुद कर पा रहे हो, किसी डिजाइनर के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। आप उठाओ, चेंज करो, लगाओ, भेजो। तो ऐसे करके आप 5 इमेज, आज आपके पास आपका असाइनमेंट है 1 लोगो 5 इमेजेस तैयार करके गूगल माई बिजनेस पेज पर लगाना है। नाउ सत्या, आर यू देयर? हेलो। यस सर, यस सर। सो गूगल माई बिजनेस पेज, टाइम तो ज्यादा हो गया है, कैसे करेंगे? जिसने नहीं बनाया उसके लिए बोला है मैंने। तो आप गूगल माई बिजनेस पेज प्लीज सारे बनाएंगे। ये 5 इमेज बनानी है आपको, ये आपका असाइनमेंट है। एक लोगो बनाएंगे, और कल, आज लेट हो रहा है, आपको भी लेट जाना है, 10 से 12 के बीच में मैं और सत्या अवेलेबल हैं। आपको जिसको भी हमारी सपोर्ट से इमेजेस बनानी है, गूगल माई बिजनेस पेज बनाना है, वी बोथ वुड बी अवेलेबल फॉर यू। यू कैन कनेक्ट एनी ऑफ अस। हम आपको गूगल माई बिजनेस पेज क्रिएट करा के देंगे। Now, in case you have any question or query, you can ask now. सर अभी ये आपने बोल रहा था इमेजेस, मतलब हमारा जो इट कैन बी अ फ्लायर आल्सो, नो? हाँ, you can create anything, sir. It was just a demonstration how to create. You can create a flyer. You can create a brochure also in Canva. You would get ready-made templates for brochures, flyers, posters, anything you can create from there. Any business type of communication, visual communication, you can create. कोई और क्वेश्चन है? Even in Namecheap, there is logo preparation. It helps you in logo preparation also. There are so many websites, Namecheap. sir. So many websites for logo preparation. You can do it, but easiest way is this. जहां आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, बस उठाई चीजें ऐड कर दी। तो there are a lot of options available online. There are so many websites wherein you can create your free logo. बट पोस्टर्स जब आप कस्टमाइज करते हो ना, तो उसके लिए इससे बढ़िया ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से बढ़िया ऑप्शन आपके पास नहीं है। अदरवाइज आपको कोरल ड्रॉ सीखना पड़ता है, फोटोशॉप सीखनी पड़ती है। तो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एडोब प्रीमियर, इतने सारे बड़े सॉफ्टवेयर्स को, क्योंकि आपका कोर नहीं है डिजाइनिंग, यू आर नॉट ए डिजाइनर, सो यू जस्ट वांट टू आई मीन मैनिफेस्ट योर आइडिया, योर थॉट, विच यू कैन डू बेटर वे. So idea is in your mind, and you can explore the things which can manifest your idea. Go to internet. Yes, please. So like in poster के लिए Canva is the best, no? You have a lot of templates, posters, or even brochures. Yes, Canva is a good option in case you want ready-made templates. उसके लिए Canva is the best बोलता है ना? हाँ, रेडीमेड टेम्पलेट्स जब चाहिए तो आपको कैनवा बेस्ट है। और अगर आपको आइडिया है, इंटरनेट से लिया, कस्टमाइज करना है, तो आपका पावर पॉइंट बेस्ट है। कैनवा होना चाहिए। कैनवा आपका साइजिंग का इशू है, साइजिंग का लिमिटेशन है। वो एक फ्री में एक सिंगल साइज ही आपको डिजाइन करने देगा, प्रीमियम में तो साइजिंग कर लेने देगा, बट फ्री में आपको एक ही साइज करने देता है वो। पावर पॉइंट में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी साइज की इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। नहीं, कैनवा में बना के उससे लेकर पावर पॉइंट में आ सकते हैं ना? वाइज आइडिया, वाइज आइडिया, ऐसे कर सकते हैं सर। तो आई थिंक आज क्लास खत्म करें। ओके सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट, प्लीज गो अहेड। ये 5 आज गूगल माई बिजनेस पे जरूर बना लेना सर, प्लीज बनाना भले। ओके, गुड नाइट जी। ओके, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।